Assalamu alaikum everyone. Hope so all are doing good. Are you guys hearing me? Alhamdulillah, मैं ठीक हूँ. Hope so all are doing good also. Let me add more people. Hello everyone. Just wait a bit. Walaikum assalam. Okay, so people are coming. Wait, just okay. Walaikum assalam. So hope so all are doing good. So let us start our orientation class. Start from me. I'm Said Mohammad Rehan, and I'm a Flutter developer. Actually, I started my Flutter development uh, in when I was in my last master's in seven, and then I joined after my graduation. I joined the Excellence Paper, and I teach there Flutter development, and I joined the startup, program there, the application, and I'm doing currently a full-time Flutter developer job. And let's start with you guys. If you have any question, you can ask also. You can unmute yourself also, and you can also tell me about where are you from, what's your name, and why you choose web development. Hello, sir. Walaikum assalam. Assalamu alaikum, sir. So my name is Danish and I live in Sadikabad. I'm currently doing my BTech from Whitfield University of Pakistan. I have learned full stack development from the same platform, and now I'm taking this intro class of Flutter development. So I have a question. How long has it been that you're doing Flutter development, and what's its scope in the market that is growing rapidly these days? Okay, so first I was in the React Native, then I shifted into the Flutter development as Flutter development is getting more famous because of the Google framework. It is actually using the Google framework, and the world best thing about is that जब हम इसके अंदर एप्लीकेशन कोई बनाते हैं तो जो हम एंड्रॉइड के लिए बनाते हैं सेम टू सेम एज इट इज वो iOS के ऊपर रन होती है. ठीक है, लाइक जैसे आप React Native के अंदर करते हैं, आपको कुछ इंपोर्ट्स करनी पड़ती हैं iOS के लिए अलहदा, तो मतलब वो बिट डिफिकल्ट होता है और रेंडरिंग उसकी थोड़ी इशू होती है, मतलब लेट होता है. तो लेकिन जो फ्लटर डेवलपमेंट है वो इस हिसाब में बहुत अच्छा है कि वो यूआई बहुत अच्छा बना के देता है एंड रेंडरिंग वगैरह. और ऊपर से ये है कि ये सिर्फ अब iOS और एंड्रॉइड के लिए नहीं रहा, अब
लाइक आप इसमें वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस वजह से भी लोग इसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और ये वाकई ही रेक नेटिव की निस्बत बहुत ज़्यादा, अगर आप इसका देखें मार्जिन एवरेज देखें स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर भी, तो ये मतलब इस साल 41% ज़्यादा थी रेक नेटिव से। So, sir, my question is that after coming of AI and the Chat GPT, what is the current market status of this Flutter development and the other languages out there? Okay, so when I was in my 7th semester, I proposed a solution for plant disease detection, and it was necessary for us to implement the AI in our application. So even I was working in the React Native, but it was big difficult to integrate the AI in that. Then I just moved into the Flutter development, and I implemented the AI in this also. As you are asking about like just ChatGPT has arrived, Bard arrived, so what about us? अब देखिए आप एक नॉन टेक बंदा है, वो क्या कहता है कि मुझे एक एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। अब ChatGPT आपको कोड करके दे देता है, ठीक है, और बार्ड भी आपको करके दे देता है, बट इश्यू इज दैट आप उसको मतलब कि उसको आपने सेट भी तो करना है कोड को। मतलब वो उसे सब कोड दे देगा, वो पूरी की पूरी फाइल्स नहीं बना के दे सकता। तो मतलब ये है कि वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, बट आपको बहुत ज्यादा ईज मिल सकती है उन AI टूल्स को यूज करके। लाइक आप अगर कहीं स्टक हो तो आप मतलब ये काम कर सकते हैं, वहां उसे आप कोई आइडियाज कमांड मिल जाते हैं हमें, उससे उसका कोई फ्रंट एंड मिल जाता है, इस तरह हम बना सकते हैं, बिल्कुल आइडियाज मिल जाते हैं उससे। सिर्फ वो आप यूं समझे कि आप कहीं पर स्टक हो गए हैं ना, तो आपको वो आइडियाज दे देता है। हाँ वो वाकई ही हेल्पफुल है, लेकिन बात वही है कि देखें एक नॉन टेक बंदा है, उसने तो एप्लीकेशन बनवानी है, अब उसे क्या इसका इल्म है, वो मतलब कि कौन सी फाइल कहाँ कहाँ उठा के मर्ज करेगा। अब देखें आप जैसे अगर कोई वेब डेवलपमेंट का होगा, कोई रिएक्ट नेटिव का होगा, बहुत लोगों ने काम किया होगा, तो देखें इसके अंदर क्या सीन होता है। आप एक फाइल बनी हुई है, आप उसको से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, फिर दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो मतलब आपने इसको भी तो अरेंजमेंट करनी होती है। लाइक अब आपने कोई क्लीन कोड करना हो, ठीक है, तो आपको मतलब पूरे का पूरा सिनेरियो देखना पड़ता है। अगर आपने कोई इन फ्यूचर उसके अंदर अपडेट करनी हो, तो आप उससे ये तो नहीं कह सकते चैट जीपीटी को कि भाई मैंने आपसे कहा था, आपने मुझे एप्लीकेशन बना के दी थी, तो मुझे बताएं कि मैं इसमें मतलब कि चेंजिंग मुझे करके दो। अब आपको पता है चैट जीपीटी आपका चीज याद नहीं रखता, वो तो कहेगा नहीं मुझे तो कोई फाइल दो तो मैं उसमें अल्टरनेशन करके दूंगा। तो मतलब ये कि डेवलपर अभी तो खत्म नहीं होते हैं, बेशक एआई आ जाए, ठीक है, बट जो एआई को यूज कर रहा है वो आपसे ज्यादा फास्ट होगा, मतलब वो आपसे ज्यादा आगे निकलने की कोशिश कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एसएस है, वो माइंड यूज कर रहा है, वो चैट जीपीटी को यूज कर रहा है अपना कोड करने के लिए, तो मतलब वो कम टाइम के अंदर ज्यादा काम कर सकता है। और हाँ अगर वो कहीं स्टक हो जाता है, जैसे हम इंसान है कहीं भी स्टक हो सकते हैं, टाइम ज्यादा ले सकते हैं, तो लेकिन वो एआई को अपने लिए हेल्पफुल बना सकता है, ठीक है। जैसे कोई एल्गोरिथम है, आपसे नहीं हो रहा है, तो आप चैट जीपीटी को बता सकते हो कि यार फाइंड आउट द इशू इन इट एंड फिक्स इट आल्सो, तो वो आपको दे सकता है। अक्सर हर दफा हमने भी यूज किया है, मतलब कि आप यूं कह सकते हो कि वो 70% 80% वो सही आंसर दे देता है, लेकिन अक्सर दफा हमें खुद भी चेंजिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो आपको उस तरह नहीं दे सकता जो कि आपको एक डेवलपर समझ के और आंसर दे सकता है। Okay, thank you, sir. Thank you so much. वेलकम। So there are 11 participants, so you can. Okay, Kashif Nawaz raising your hand. Please, Kashif. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, actually, I have a question. My question is related to AI. Actually, Sure. sir, yeah, sir, thank you very much. Sir, what does it mean by AI or artificial intelligence? Like, I want to get more and more knowledge about this thing, artificial intelligence. So, can you describe me this term in a very easy word? Okay. देखें जो AI है एक्चुअली इट स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब इसके अंदर मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ग्लोबल आप यूं समझे कि हब है, वर्ड है, जिसके अंदर एक ट्री है,
मशीन लर्निंग, और उसके अंदर आता है आपके पास डीप लर्निंग। ठीक है, मशीन लर्निंग मतलब एक अलहदा सब्जेक्ट है और डीप लर्निंग अलहदा सब्जेक्ट है। अब ये होता है कि हम जैसे आप कोई प्रोग्राम बना देते हो और आप उसे आपने उसे फंक्शनैलिटी दे दी है कि आपने ये काम करना है, आप वो रिपोर्ट में इनपुट डाल देते हो तो वो उसके मुताबिक काम करता रहेगा। ठीक है, लेकिन अक्सर होता है हम न्यूरॉन मतलब कि न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं। जैसे आप मशीन लर्निंग के अंदर आ जाएं, डीप लर्निंग के अंदर आ जाएं, तो आप उसको ट्रेन करते हो, वो ऑटोमेटिक चीजों को ऑब्जर्व करता है और उसके मुताबिक, जैसे चैट जीपीटी है, मैं आपको बताता हूँ, आपने कभी गौर किया होगा, आप उसको कोई कमांड देते हो, ठीक है, वो क्या कहता है और वो कोई गलत आंसर देता है, फिर आप उससे कहते हो कि नहीं ये आंसर ठीक नहीं है, वो अपोलोजाइज करता है, फिर कहता है कि ये ठीक है। अब वो क्या हुआ, जब आप उसे दोबारा कुछ कहते हो कि मुझे ये दो, तो वो आपके जो पुराना जो थीम चल रहा है ना, वो उसको फॉलो कर रहा होता है। क्यों? उसने अब लर्न कर लिया है कि मैं इस काशिफ के लिए स्पेसिफिक हो गया हूँ और ये इसके अंदर काम कर रहा है। ठीक है, अब वो आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जाएगा, मतलब ये होता है कि अब उसने इस चीज को लर्न कर लिया है। अब वो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं इसके अंदर, मतलब कि न्यूरल नेटवर्क आ जाता है, मतलब काफी चीजें आ जाती हैं, वो एआई के अंदर बेसिकली आती हैं। तो ये होता है कि ये चीजें ऑटोमेटिक हम इंसानों की मदद से अपने आप के अंदर चीजें अब्सॉर्ब करती रहती हैं। और इसके आगे जो डीप लर्निंग है वो बहुत मतलब कि एडवांस है। उसके अंदर ये होता है कि आपको इमेज देते हैं, जैसे चैट जीपीटी 4 आया है। चैट जीपीटी 4 बेसिकली अब इसके अंदर क्या यूज करा है, डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या करता है, आपके लिए इमेज क्लासिफिकेशन करता है, कि मतलब वो उसके न्यूरल नेटवर्क्स बनाएगा, उसकी इमेज को देखेगा, ब्लरिंग स्लरिंग हर चीज, तो उसके मुताबिक आपको आंसर्स देगा। तो वो मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या आया, मशीन लर्निंग, जो आपसे मतलब कि खुद ब खुद ट्रेन होके आंसर्स देती रहती है। फिर आगे डीप लर्निंग बहुत एडवांस, जो इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, मतलब आपको इमेज दें, ठीक है, तो वो आपको उसकी बेस के ऊपर सही आंसर देगा। जैसे मैंने अपनी एप्लीकेशन बनाई थी बैक इन 2021 प्लांट डिसीज डिटेक्शन की, हम सिर्फ उसे इमेज देते थे और वो उसके मुताबिक आंसर्स आपको दे रहा था। तो ये होता है एआई का। तो मतलब एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगी, लेकिन इन फ्यूचर जो इसको यूज कर रहा होगा वो आपको जरूर कर सकता है। Okay, sir. Okay, thank you very much for letting me know. And actually, I know you are like we are going to start our class, sir. But actually, I have one little more question. श्योर श्योर Like just for motivation, I want to ask you a श्योर श्योर। question. Yeah, as sir, as you are a trainer and you are going to teach us, but actually, I want to know the salaries, the basic salaries of a Flutter development, like ओके those persons who are doing this job and those persons who is going to start this job as a scratch. So how much he ओके can get as a Flutter development or web developer? ओके Sir, can I answer your on your behalf? श्योर, इफ यू वांट, श्योर यू कैन। Yeah, there is this website called Indeed Search and Glassdoor. These are the global platforms where you can search for the jobs for the developers and the other things. And currently, I was searching for the JavaScript developer when I was doing the website designing and developing course. And I have searched that the most demand jobs in the market in the IT industry, and the JavaScript was number one, and then comes the Python. Same goes for the mobile app development, and I am opening that jobs for now for the Indeed jobs I am searching. And you can search as well on there that what is the salary, basic salary, and it range from 120K, that means 120,000 per year. And that's in dollar, not in Pakistani rupees. It's in dollar. If you are experienced and you have the knowledge and you have the skills, then you can get that job easily. Those jobs are can be remote and as well as on site. So these are the basic salaries. And now I have opened that the Flutter mobile app developer, and it's hiring uh, 41,000 basic salary in pounds. So you can guess what is the scope of the industry and what can you get if you are experienced and a good developer and you have the knowledge and the skills. Hope I answered the question. Thank you, Danish, for letting Oh. him know. And yes, Danish is saying right.
But in Pakistan, when you go as a fresher, you just start with your internship, and basically the internship will give you 20K first. And but if you show and grow fast, you jump to the junior developer, and it gives you somehow in Pakistani 70K. And then as you go gradually to the senior, you can earn up to 2K easily. And but in Pakistan, it depends on you and the company. So if you show your best, then you can be selected in the better company. You're welcome. Okay, can I get the link of this website? Kashif, if you want to search indeed.com, rosie.pk, and the best platform actually, you can say all the time, is LinkedIn. Better try to create your LinkedIn account and then search there. वहाँ पे अब्रॉड की भी जॉब्स आती हैं, पाकिस्तान की भी जॉब्स आती हैं, एंड यस ग्लासडोर इज द बेस्ट. वहाँ पे रिव्यूज भी होते हैं उसके कंपनीज के कि वो अपने जो एम्प्लॉय हैं उनको कितने पैसे देते हैं और वो कैसी कंपनी है. थैंक यू. Sir, can we move to the orientation, real orientation and introduction of the development? Yeah, sure. Yes. Okay, so is my screen is visible? Yes, sir, it's visible. Thank you. So as you are saying on my, okay, the course is about first of all about the Dart. Actually ऐसा है कि Flutter जो है और Dart इसमें थोड़ा डिफरेंस है. हम लोग जो कहते हैं एक्चुअली में कि हम Flutter डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो एक्चुअली Flutter जो एक्चुअल है वो हम यूज करते हैं UI बनाने के लिए, ठीक है. और जो उसका अगर हम देखा जाए कि हम कोडिंग इसमें कर रहे हैं, जो लॉजिक्स बना रहे हैं, तो वो हम एक्चुअली करते हैं डार्ट के अंदर. तो जो डार्ट है वो बेसिकली क्या है, क्लाइंट ऑप्टिमाइज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है. और जो कि फ्लटर के साथ हम इसे यूज करते हैं. और जो फ्लटर है ये फ्रेमवर्क है जो कि जो डार्ट के डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करता है और मतलब कि एप्लीकेशंस बनाता है. तो ये इसमें फर्क है. तो मतलब अगर आपसे कोई कहे तो आप उसे ये बता सकते हैं कि जो डार्ट है वो मतलब कि फ्लटर के अंदर यूज होती है, और जो फ्लटर है वो एक्चुअली में एक सिर्फ फ्रेमवर्क है, जो डार्ट है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो उसके बाद ये है कि डिजाइन एंड बिल्ड अ कंप्लीट फ्लटर एप्लीकेशन. हम इंशाल्लाह फ्लटर की एप्लीकेशंस बनाएंगे. और उसके बाद इसके अंदर जो मतलब कि डेवलप विजुअल बिहेवियर इमोशन विद फ्लटर विजेट्स. एक्चुअली जो फ्लटर है ये इसकी जो हर चीज है, इवन के रोज कॉलम, हर चीज इसके अंदर कंसिस्ट ऑफ विजेट्स है. हम यहाँ पे आप कहीं भी से देखेंगे तो आप यही पढ़ेंगे विजिट, रो विजिट, स्टैक विजिट. तो मतलब ये हर चीज विजिट्स के ऊपर है, ठीक है. ये बिल्ड ऑफ जो हमारी यूआई बनती है डिपेंड्स ऑन द विजिट्स एंड बिल्ड्स अपॉन द विजिट. एंड गूगल मैप्स, यस इट्स मस्ट नेसेसरी. तो हम इसे गूगल मैप्स को भी देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट होते हैं. एंड फायरबेस जैसे कि ये नो एसक्यूएल है, आप लोगों ने माई एसक्यूएल यूज किया होगा, एसक्यूएल यूज किया होगा. तो हम यहाँ फायरबेस वगैरह यूज करते हैं अपनी ऑथेंटिकेशंस वगैरह के लिए, ठीक है. तो हम फायरबेस को देखेंगे. एड एंड कस्टमाइज मोर देन 100 फ्लटर विजिट्स. इसके अंदर जो क्लासेस होती हैं हम उसे कस्टमाइज कर सकते हैं. हम खुद भी विजिट्स बना सकते हैं अपने लिए, आसानी के लिए, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, ठीक है. और कॉन्फ़िगरेशन एंड्रॉइड एंड आईओएस ऐप आइकन्स, यस. क्योंकि हमने जब हमने प्ले स्टोर के ऊपर जब ऐप डालनी होती है या हमने
iOS की मतलब कि एप्लीकेशन ऐप अकाउंट के ऊपर, एप्पल के अकाउंट के ऊपर, डेवलपर अकाउंट के ऊपर हमें डालना होता है, तो हम वहाँ पे आइकन्स देते हैं, तो हम उसके कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं, अपडेट एंड फिक्स फ्लटर कोड। हाँ, ये बहुत अहम होता है। वो ऐसे कि आप किसी भी कंपनी में जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपसे मतलब कि उम्मीद रखते हैं कि अगर कहीं एरर आ जाए, क्योंकि अक्सर कंपनीज होती हैं वो ऊपर से मतलब उनके पास जब अब्रॉड से कोई कोड आता है, मतलब फॉरेन से जब कोई क्लाइंट आता है, तो उन्होंने ऑलरेडी कहीं से एप्लीकेशंस बनाई होती हैं और उनमें बहुत सारे बग्स होते हैं। तो हमें अच्छी तरीके से फ्लटर का पता होगा तो ही हम फ्लटर कोड के अंदर जो फिक्सेस हैं, बग्स वगैरह हैं, हम उसको मतलब कि डीबगिंग करके एक्चुअली हम डीबगिंग करेंगे और उसको इस तरह पे कैच करेंगे कि एक्चुअली में एरर आ कहाँ पे रहा है। ठीक है। डिजाइन एनी iOS एंड्रॉइड ऐप, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो इसका बेस्ट एडवांटेज ये है कि जो हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, अगर हम उसको कोड करते हैं तो सेम लाइक जो हमारा iOS का है, सेम टू सेम वो भी उसी तरह बिहेव करेगा। मतलब कोई विजिट हमने लगाया, कोई हमने रो बनाई है, कोई हमने कुछ भी किया है, तो वो सेम लाइक वो सेम बिहेव दोनों पैटर्न्स के ऊपर बिहेव कर रहा होगा। फिर हम कहेंगे पब्लिश एंड्रॉइड एप्स टू गूगल प्ले स्टोर एंड iOS ऐप टू Apple Store, consider yourself yeah. So one main topic I think that is missed and basically two. So आप लोगों ने कहीं देखा होगा कि अक्सर जगह पे आपसे पूछते हैं स्टेट मैनेजमेंट का। तो स्टेट मैनेजमेंट बहुत अहम है इसके अंदर, हम उसको भी देखेंगे। और उसके अलावा एक और मेन टॉपिक है, वो है APIs इंटीग्रेशन का। क्योंकि एक्चुअल में जब आप बड़ी एप्लीकेशन के साथ काम कर रहे होते हैं तो वो आपको फायरबेस नहीं देते हैं, आपको SQL नहीं कहते हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपने बैकएंड सर्वर को बैकएंड हायर किया होता है, तो वो आपको APIs बना के देता है। और API अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है क्योंकि वो बहुत ईजी है इंटीग्रेट करना। लेकिन बहुत अहम टॉपिक है वो, हर जगह जहाँ आप इंटरव्यूज में भी जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, तो एक्चुअली में वो आपसे APIs का लाजमी पूछते हैं। APIs का हो गया, स्टेटमेंट्स का हो गया, तो मतलब इन चीजों को हमें आना लाजमी है। तो इंशाल्लाह हम इसे देखेंगे। तो कोई एनी क्वेश्चन टिल देयर? Sir, if I know the web designing and development, how Yes. how much time I will take to learn, app development and the Okay. technology behind it. I'll learn Java, JavaScript, and the jQuery and other programming या as well. ओके। आपको अगर पहले से लैंग्वेज आती है तो आपके लिए बिल्कुल इजी है, क्योंकि जो फ्लटर है आप यूं कहेंगे मोस्ट मतलब कि मच इजी देन एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप बस कह सकते हैं कंसिस्टेंसी, और मतलब कि आप अगर जितना उसको टाइम देते हैं उतना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पहले से ही लॉजिक बिल्डिंग आती है। और जो डार्ट है, अगर आपको ऊप आती है, तो वो बेसिकली उसी के ऊपर कंसेप्ट है। जैसे हम उसमें ऊप में क्लासेस बनाते थे, तो सेम लाइक हम इसके अंदर भी क्लास बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो इन इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें सेम डार्ट के अंदर भी हैं। तो इट विल नॉट टेक मच टाइम टू यू। Okay, sir. Thank you. वेलकम। Assalamualaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I want to ask, my educational background is not concerned to computer language or computer sciences. श्योर। Then, then can I learn this Flutter development, मतलब programming, or is it easy for me to do it, or something about यस। this? मैंने आपको जैसे बताया था, पहले मैंने मतलब जहाँ पे पढ़ाया है एक्सेलेंस लीवर लाहौर के अंदर है, तो जी। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे नॉन टेक और कुछ थे टेक के। तो जी। उसमें एक बड़ा इत्तेफाक ये था कि एक लड़का था और वो था इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। मतलब 2-3 स्टूडेंट्स थे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के, और उनको ये कोडिंग नहीं आती थी, मतलब उन्होंने कभी आज तक ये काम नहीं किया था। और यकीन करें, जब कोर्स खत्म हुआ था तो सबसे अच्छी मतलब कि कोडिंग फ्लटर की वो लड़का करता था। उसका ये था कि वो जो उसे पढ़ाई जाती थी वो उसे एडवांस भी करने की कोशिश करता खुद से, मतलब वो उसे प्रैक्टिस करता था, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करता था, मतलब लर्निंग के लिए। तो मतलब कि जब वो कर सकता है तो श्योर, व्हाई नॉट यू। Thank you.
एंड Thank you. फ्लटर बहुत इजी है, मतलब जब हम स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे तो हाँ, जहाँ आपको कोई इश्यू हो तो आप काइंडली पूछें, तभी आप लोग मतलब आगे बढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि हम आगे जाएं और आपको कोई इश्यू फेस हो रहा हो तो आप वहीं पे अटके रहेंगे और बाकी जो है वो आगे निकल जाएंगे। मतलब नॉट फॉर यू, फॉर ऑल, मतलब कि जो जहाँ फंसे, जो कोई इश्यू, उसे इश्यू फेस हो रहा हो तो काइंडली हमें बताएं, तो उसे मतलब अगर उस दिन ना से टाइम की वजह से या कुछ की वजह से, तो नेक्स्ट डे लाजमी उसे सॉल्व किया जाएगा। Thank you. वेलकम जी काशिफ। सर एक्चुअली मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि वेब डेवलपमेंट में, वेब डेवलपर में और सॉफ्टवेयर इंजीनियर में कोई डिफरेंस है, और अगर है तो वो क्या डिफरेंस है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर, अच्छा देखें, आप जब जाते हैं ना किसी कंपनी के अंदर, तो वो आपको एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बुलाता है, ठीक है, या वो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर के उससे बात करते हैं। अब इसके अंदर फर्क ये आता है, आप सिर्फ उस वक्त डेवलपर हैं, ठीक है। आप आपको जो कमांड दी जाएगी, आपने मतलब कि उसको मतलब पूरा कर देना है। मतलब आपसे ये कहा गया आपने स्क्रीन बनानी है, आपने उसे कर दिया, लेकिन आप उस वक्त लीड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ नॉलेज कहाँ तक का है, मतलब ये कोड आया है, मुझे ऐसे इसको बना देना है और मैंने बनाते जाना है। मतलब कोई आप टाइमलाइन फॉलो नहीं करोगे, आप कोई चीजें फॉलो नहीं करोगे, कोई रूल एंड बिहेवियर फॉलो नहीं करोगे। आपने मतलब क्लाइंट को कोई टाइम मिला हुआ है, आपने उसे कैसे कम्प्लेक्सिटी को फॉलो करना है, इस टाइम कम्प्लेक्सिटी को, और कैसे आपने उसे डिलीवर करना है, आपने उसे कैसे हैंडल करना है, लाइक आपने कौन से पैटर्न्स यूज करने हैं कि मतलब मैं जल्दी से डिलीवर कर सकूं, मुझे कौन से काम, मतलब तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला इसको आपको मतलब कि गाइड कर रहा होगा, मतलब वो आपको लीड कर रहा होगा, जो आपका टीम लीड होगा वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां पे वर्क कर रहा होगा। मतलब वो आपको बताएगा कि हमने मतलब कि ट्रेलो बेसिकली हम यूज करते हैं, तो वहां पे स्प्रिंट्स बना देंगे, तो साथ आप दूसरों को भी ऐड कर देंगे, ठीक है, जो आपका क्लाइंट होगा। आप उससे बताएंगे भाई हम इस पैटर्न के ऊपर काम करेंगे, जैसे अजाइल का हो गया, दूसरा होगा कि हम आपको बीच में इन्वॉल्व रखेंगे, हम जैसे ही एक वीक की कोई भी चीज होगी आपको फौरन बताएंगे, आपको कोई इशू होगा तो हम उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद डिजाइन पैटर्न के अंदर आ जाता है, लाइक आप क्लीन आर्किटेक्चर का यूज कर रहे हो, सॉलिड प्रिंसिपल्स का यूज कर रहे हो, तो एक्चुअली में आप उससे सब कोड कर रहे हो तो एज ए वेब डेवलपर, ठीक है। तो जैसे ही आप एडवांस इन पैटर्न्स की तरफ आते हो कि हमने कैसे फॉलो करना है, कैसे चीजों को लेके जाना है, तो आप एसोसिएट और फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक आते हो, जो कि आप फिर टीम लीड के ऊपर आ जाते हो। तो ये बस फर्क है। तो मतलब सिंपल इन वर्ड्स के आप उस डिजाइन पैटर्न्स और हर चीज को फॉलो करते हो कि मतलब हमारा जो टाइमलाइन है वो पूरा हो सके, हमारी कोडिंग अच्छी हो, ठीक है, क्लीन कोड के साथ हम चल रहे हो, एक टाइमलाइन एक ट्रैक के साथ हम चल रहे हो। लेकिन जब एज अ वेब डेवलपर अलोन काम कर रहे होते हो, आपको पता है आप कभी वहां पे काम कर रहे होते हो, मतलब मैं आज ये वाला काम खत्म कर दूं, आज मैं काम खत्म कर दूं, तो इस तरह ये हो सकता है कि आपका मेन इंपॉर्टेंट जो काम है वो एक्चुअली में रह सकते हैं। तो ये चीजें होती है। सर मैं अगर देखूं तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो ऑल इन ऑल मतलब ओवरऑल फील्ड को कवर करती है। बिल्कुल। कोडिंग में जितनी भी लैंग्वेजेस आती हैं, कोडिंग का जो भी पैरामीटर्स होते हैं उन सबको फॉलो करती है। जबकि जो होता है वेब डिजाइनर डेवलपर वो सिर्फ वेब में काम करता है, वेब एप्स हो गई, ठीक है, वेबसाइट्स हो गई। तो जितनी भी ये चीजें हैं सिर्फ उन पे फोकस होता है। उनका बाकी जो जनरल पर्पस लैंग्वेजेस होती हैं जैसे पाइथन हो गया या दूसरी जो हो गई डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो गई या अदर एप्स हो गई, वो उन पे वो फोकस नहीं करता। जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, ये अलग फील्ड है, ये वेब डिजाइनिंग में नहीं आती, ठीक है। हाँ ये है कि इसमें अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखा जाए तो वो ये इसमें आ सकता है इजीली, वो वेब डिजाइनिंग में भी जा सकता है, वो ये भी सारा मतलब वो कर सकता है क्योंकि उसने जावा पढ़ी होती है, तो जावा की कोडिंग आती है, उसको कोडिंग की बेसिक आती होती है। इनफैक्ट जो सी मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज जिसे कहा जाता है उसने वो पढ़ी होती है, उसकी कोडिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, उसको पता होता है कि पाइप फ्लो क्या होते हैं, फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, ठीक है, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसको पता होती हैं, ठीक है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अलावा से गिटहब का भी पता होता है। तो ये चीजें जो होती हैं ना ये उसको पता होती हैं। तो सॉफ्टवेयर डिजाइनर जो है ना वो समझ लें कि एक वो ओवरऑल सारी फील्ड को कवर करती है, जबकि जो वेब डिजाइनिंग है या ऐप डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग है ये फोकस करती है सिर्फ एक एस्पेक्ट पे। थैंक यू। इरफान जैसा साथ चलिए। तो यहाँ पे और भी ज्वाइनर्स हैं, हुसैन, इरफान, साद, सैयद,
तो आप लोग भी क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि आप में कोई हेजिटेशन ना हो, और मतलब क्वेश्चन हो जहन के अंदर आप वो भी काइंडली पूछें, ताकि जाहिर बात है आपने कोर्स पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि मतलब प्रॉस एंड क्वेश्चन हमने करने वो भाई कर रहे हैं, उनका जी। आंसर कैन यू स्पीक अगेन काइंडली? सर आई हैव अ क्वेश्चन, ये हम ये ऐप की एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में करेंगे या विजुअल स्टूडियो? विजुअल स्टूडियो का आपने पूछा और एंड्रॉइड का, ऐसे ही है? हाँ जी हाँ जी। ओके, ये मतलब ऐसा है कि हर किसी के ऊपर डिपेंड है कि वो किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो कोडिंग करने में। एक्चुअली में हमने करनी कोडिंग है, तो अगर आप में से कोई ऑलरेडी एंड्रॉइड डेवलपर है तो वो बेशक एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ कर सकता है। वो एंड्रॉइड स्टूडियो का होना लाजमी भी है। वो ऐसे है क्योंकि उसके अंदर जाके ही आप अपने इम्यूलेटर वगैरह बनाएंगे, और जो है जो आपका विजुअल स्टूडियो कोड है वो दरअसल आपको इतना कम्प्लेक्सिटी नहीं देता, वो आपको बहुत सारे प्लगइन्स देता है, बहुत सारी ऐसी चीजें देता है जिससे आप ना फास्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जी मतलब तो मेरा फेवरेट एडिटर है वो विजुअल स्टूडियो कोड है। एनीथिंग एल्स? ओके, आई हैव द हाउ लॉन्ग इट विल वेट सर प्लीज आंसर। Wait, let me answer for the problem. This one is still as a behind. ओके, जो एपीआई होती है वो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो आपको कोई भी मिल जाए, नो इशू। हम यहाँ पे एचटीटीपी वगैरह यूज़ करते हैं और उसकी बेस पे ही हम इम्प्लीमेंटेशन सारी करते हैं। तो इससे कोई कंसर्न नहीं है कि एपीआई किस लैंग्वेज के अंदर बनी है, जैसे हमें एपीआई चाहिए, ठीक है, या उसका कर्ल चाहिए तो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बिकम फ्लटर डेवलपर एज एन ह्यूमन? जैसे कहा जाता है 90 डेज का, 90 डेज का, 60 डेज का। तो मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट लगाते हैं, जितना कंसिस्टेंट रहते हैं तो आप फ्लटर डेवलपर इजीली बन सकते हैं। बस ये है कि कंसिस्टेंसी चाहिए, मोटिवेटेड रहें तो यू कैन बी। किस लैंग्वेज पे कर सकते हैं? English language से प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड किस लैंग्वेज पे कर सकते हैं? काइंडली हैदर, आप मतलब चाहें तो बोल भी सकते हैं, ठीक है, मैंने मैसेज अब देखे हैं तो इसलिए आई एम सॉरी, माइक इज नॉट वर्किंग। ओके ओके, सॉरी। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू बिकम, सर फ्लटर का स्कोप क्या है, काइंडली कैन यू शो सम जॉब और एवरी सैलरी? ओके, लेट्स check on the Indeed and some other platforms. Wait. Okay. The jobs. Okay, अब आप देखें कि better jobs title positions ये। ओके, तो आप ऐसे ही बेसिक सर्च कर सकते हैं। फ्लटर जॉब्स आप लिखें तो आपको जो गूगल है वो भी दिखा सकता है। अगर आप इसमें फिर जाएं 100+ मोर जॉब्स, तो आप यहाँ पे अपने फिल्टर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। डेट पोस्टेड के कब हुई, पास्ट वीक में कितनी दफ़ा फ्लटर डेवलपमेंट की जॉब्स हैं, यहाँ पे सामने कितनी ज़्यादा जॉब्स आई हुई हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने फ्लटर की क्या क्या डिमांड की हुई हैं और कैसे कैसे हैं। जैसे फ्लटर डेवलपर इन्होंने मांगा हुआ है, लाहौर का है, ये भी लाहौर का है, सीनियर मांगा हुआ है, फ्लटर डेवलपर कंबाइंड फैब्रिक्स,
ठीक है, वाया लिंक्डइन। जैसे मैंने आपको बताया था कि लिंक्डइन के ऊपर बहुत सारी इसकी जॉब्स आती हैं। फ्लटर डेवलपर पहले लूप ने मांगा हुआ है वाया लिंक्डइन, फ्लटर डेवलपर कॉन्फिडेंशियल वाया लिंक्डइन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे बेसिकली अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वो आपको एक कंबाइन दिखा सकता है। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक देखना चाहते हैं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ इंडीड आ रहा है, ठीक है। तो हम वहां जाके जरा सर्च करते हैं। वन 131 फ्लटर डेवलपर जॉब्स। ओके, अब देखें हमने पहले ही फ्लटर जॉब से किया, वो आपको 70,000 पे कर रहा है, ठीक है। और उसने ऐसे क्या इंफॉर्मेशन भी नहीं लिखी, उसने सिर्फ ये कहा है कि एक्सीलेंट फाउंडेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थ्रू हंगर फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ एंड एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लाइक आप यूं कह लें कि ये जूनियर डेवलपर होता है एक्चुअली में, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये है मुनाफा के अंदर आई हुई है, आ जाइए। तो उन्होंने अपना इसके बारे में लिखा हुआ है कि उनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, उन्हें क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो लाहौर के डेफ लॉज के अंदर आई हुई है, ये रेड स्टार इस्लामाबाद लाहौर। आप ऐसे आके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आके फिल्टर लगा सकते हैं कि डेट पोस्टेड कब की है, लास्ट 7 डेज में किस किस ने पोस्ट की है, तो आपके उसके मुताबिक यहाँ के पता लग जाएगा कि किस किस ने जॉब की है। देखें आपके सामने लास्ट 7 डेज में इतनी जॉब्स आई हैं। साथ यहाँ पे आपको पे भी पता लग जाती है कि एक्चुअल में कितना मिल रहा है। लाइक देखें यहाँ फ्रीलांसिंग के साथ बताइए, फ्रीलांसिंग जी, फ्रीलांसिंग। कैन यू स्पीक अगेन प्लीज? सर फ्रीलांसिंग में इसका कैसा स्कोप है, कितना कैसे इजीली बात किया जा सकता है? ओके, अपवर्क के ऊपर इसका काफी स्कोप है। मतलब जो आप कह लेना कि जो अपनी कंपनीज जिन्होंने बनाई हुई हैं या जो काम किया हुआ है, तो वो एक्चुअली में अपवर्क के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पे काफी फ्लटर डेवलपमेंट की आती हैं। और उसके अलावा जो फाइवर है, फाइवर के ऊपर ये होता है कि आपको स्पेसिफिक मतलब कि टास्क वगैरह दे दिया जाता है, ठीक है, या कोई फिक्स एप्लीकेशन की प्राइस साथ दे दी जाती है। लेकिन जो अपवर्क है उस पर ये बेनिफिट है कि आप एक माइलस्टोन के साथ चल रहे होते हैं, तो आपको मतलब काफी एक लर्निंग बहुत मिल जाती है, और उसके बाद आपको अच्छा क्लाइंट मिल जाता है। तो मतलब फिर आपकी अपवर्क के थ्रू आपको काफी सारे क्लाइंट आने शुरू होते हैं। फिर उसके अलावा अगर आप यहाँ से मतलब अगर आपका लक नहीं चल रहा है, तो आप फेसबुक के ऊपर बहुत कम्युनिटी बैठी हुई है। उसके बाद लिंक्डइन, लिंक्डइन एक प्रोफेशनल वेबसाइट, आप वहाँ पे जाएं तो काफी लोग मतलब कि चाह रहे होते हैं। एक मुझे क्लाइंट मिला था, मतलब मैं अपने वहाँ पे मतलब कि चीजें शो करवाता था, जो काम कर लिया, तो वहां से मुझे क्लाइंट अब्रॉड का मिला था। तो इस तरह करके आप लिंक्डइन के ऊपर जाएं। एक्चुअली मैं प्रेफर यही करता हूँ सबको कि लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेस। और उसके अलावा मतलब कि आप लिंक्डइन के अगर देखा जाए, लिंक्डइन, हाँ ये जॉब्स ओपन है। अब ये देखें, आप फ्लटर के ऊपर क्लिक करें तो डेवलपर सर्च कर लें। अब यहाँ पे इस तरह जॉब्स आएंगे, मतलब जूनियर, यहाँ इन्होंने फ्लटर मांगा होगा लाजमी इसके अंदर भी। तो मतलब इस तरह आप यहाँ आए और यहाँ आके सर्च कर लें, जॉब्स के अंदर ये आ जाता है। और यहाँ आप मतलब कि एक्सपीरियंस लेवल, जॉब टाइप, मतलब कि जो भी है पार्ट टाइम, रिमोट, ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल, कंपनी कौन सी होनी चाहिए, पाकिस्तान है, ब्रॉड, जारी बात है हमें फॉरेन की चाहिए होती हैं अगर हमने डॉलर्स के अंदर अर्न करना है। तो आप यहाँ कनाडा या कुछ भी आप इसे सर्च कर सकते हैं, वो आ सकता है। और अगर उसके बाद अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जस्ट वेट, आई मीन अजान हो जाए, सॉरी।
तो अली हैदरी का सवाल है, सर अगर हम बैकएंड पे लारावेल को यूज कर रहे हैं तो क्या फ्लटर भी इजीली वर्क हो सकता है? देखें, आप कुछ भी यूज करते हैं, आप बेशक रेक्ट नेटिव यूज करें, आप कुछ भी यूज करें, तो फ्लटर के अंदर आप, जो मैंने कहा है, बैकएंड एक्चुअली हम क्या यूज कर रहे होते हैं स्टोरेज मीडियम के लिए, ठीक है। तो हम जो है उसको एपीआईज बना सकते हैं, आप बेशक नोड के अंदर बनाएं, पाइथन के अंदर बनाएं, या जिसके अंदर भी बनाएं, या लारावेल के अंदर बनाएं, तो आपने जस्ट जो डेवलपर है, आप खुद डेवलपर हैं, तो आप उसे जो है HTTP जो हमारा कर्ल होता है, आप उसे वो एपीआई देंगे, ठीक है, और उस तरह फिर आप उसको एसेस कर सकते हैं। अब वो डजेंट मैटर, तो डजेंट मैटर कि आपने वो लारावेल के अंदर एपीआईज बनाई हुई हैं या किसी भी लैंग्वेज में बनाई हुई है, आपको सिर्फ कर्ल मिलना चाहिए, मतलब HTTP जो आपको मतलब पोस्ट मेथड या गेट मेथड जो भी है, आप उसको फिर एसेस कर सकते हैं। मैं आपको एक दफा दिखाता हूँ, वेट आई मीन, बस यहाँ अब ये देखें, जैसे कि मैं क्लाइंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उन्होंने मुझे ये बैकएंड, मुझे नहीं पता ये बैकएंड किसके अंदर बना हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने मुझे बस ये दे दिया है, मतलब अगर हम आपको इसको ट्राई वगैरह करें तो वो मुझे कोई लिंक दे देगा, ठीक है, कर्ल दे देगा, और ये लिंक दिया हुआ है उसने मुझे कि मुझे इस एपीआई को मतलब एसेस करके चीजें करनी है, ठीक है। तो इट डजेंट मैटर कि वो किस चीज के अंदर बना हुआ है, किस में नहीं बना हुआ है, तो आपको सिर्फ ये है कि एपीआई इंटीग्रेशन आनी चाहिए, ठीक है, और ये डिपेंड्स ऑन ऑल योर प्रैक्टिस। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, हर दफा कुछ ना कुछ डिफिकल्ट सिनेरियो पेश आ जाते हैं, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मतलब एपीआई के अंदर काम आएगा। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, क्या कोर्स 16 लेक्चर्स में कवर हो जाएगा? इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड बेस्ट कि हम इसको कवर करें, एटलीस्ट जो नेसेसरी और जो जैसे हम इन जॉब इन सर्विस हैं, एटलीस्ट वो चीज़ें कवर करें जो आपसे इंटरव्यूज में पूछी जाती हैं, और जिससे अगर आप कोई फ्रीलांसिंग भी करें तो एटलीस्ट आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, एटलीस्ट पता हो कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हमें ऐसे कोड को कर सकते हैं, ऐसे हम एक चीज़ को लेके चल सकते हैं, ऐसा हमें कोड करना चाहिए, हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई बेस्ट कि हम इसको कंप्लीट कर सकें। Is there any math in Flutter? नो, नॉट सर, बट जो आपने लॉजिक्स बनानी होती हैं डेफिनेटली आप उसको मैथ के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे कोई ग्रेटर बिगर और एनीथिंग एल्स, लॉजिक के अंदर यूज हो सकता है मैथ, लेकिन ऐसे वहाँ विजिट्स हैं, आपने सिर्फ फ्लटर एक्चुअली क्या है यूआई बनाने के लिए, आपको रिस्पॉन्सिव ब्यूटीफुल यूआई देने के लिए, और जो डार्ट जैसे फिर आपको कोई लॉजिकल कोई चीज आ गई है, तो आप उस सूरत में फिर मतलब कि लॉजिकल चीजें उसके अंदर आपकी मैथ डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, तो इस तरह इन्वॉल्व होती है। अगर आप सिंपल कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो कि वहां पे ऐसा कि मैथ का यूज हो रहा होगा। हाँ, एक चीज है, जैसे आप रिस्पॉन्सिवनेस करते हैं तो वहां पे आप जरूर मतलब कि मैथ को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, वहां पे बिल्डिंग फंक्शंस हैं, वही सिर्फ आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आपने सिर्फ वैल्यूज देनी होती है, एनीथिंग मोर। वेलकम। जैसे मैंने आपको कहा था एक चीज कि मतलब जो एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन भी सेम होती है, और जो आपका जो iOS है वो भी सेम बिहेव कर रहा होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट्स वेट आई मीन, ओके दिखा हियर, ओके, दिस इज एक्चुअली एन ऐप जिसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, और आप देखेंगे सारी फ्लटर के ऊपर बनी हुई है अभी, ये लिस्ट व्यू, स्कोर बिल्डर वगैरह etc, यहाँ आपके मैंने etc का बैकएंड पे देख सकते हैं कि डिबगर एक्चुअली चल रहा है, तो प्रोफाइल etc, कैश आउट, ठीक है,
तो इस तरह की आप मतलब कि हर जगह अपनी बनाएंगे। तो इस तरह की ये डिपेंड करता है कि जो आपका जो क्लाइंट है वो एक्चुअली आपसे क्या चाह रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी ब्यूटीफुल आपको ऐप बनाने का कहता है, क्या चीज़ है। तो एक्चुअली में जैसे कि ये यहाँ पे बिहेव कर रही है सेम लाइक एंड्रॉइड पे बिहेव करेगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो सिंपल एक एप्लीकेशन जो मैं देख रहा था, को विजुअल कंडीशन ओके। अब देखें ये सिंपल सी एक मतलब एक ऐप थी, और जैसे कि यहाँ पे ये सेम टू सेम है, हर चीज यहाँ पे भी आईफोन में भी सेम है। तो मतलब ये था कि जो भी आप काम करेंगे वो सेम टू सेम बिहेव आपकी एप्लीकेशन में भी, मतलब कि iOS में होगा, iOS में काम करें तो एंड्रॉइड में होगा, ठीक है। बस इसमें जो फर्क आता है वो आपके एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर आता है कि अगर आप पे डिपेंड है, वो भी आपके क्लाइंट पे डिपेंड है, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो सेम जैसे एंड्रॉइड का आपको शो होगा वो वही सेम चीज आपकी iOS के ऊपर करेगी। और जो आपने फंक्शनैलिटी एंड्रॉइड के लिखी होगी सेम लाइक बिहेव आपके लिए इसके लिए एंड्रॉइड iOS के लिए बिहेव कर रही होगी। इट डजेंट मैटर कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो सेम टू सेम चीजें करेगा। बस एक्चुअल में कुछ चीजें हैं जो iOS आपको रिस्ट्रिक्ट करता है, वो आपको देनी होती हैं, ठीक है। वहाँ इसकी एक्चुअली में इनपुट फाइल होती है, वहाँ आपको अगर आपने कोई लोकेशन सेट करना है आप उससे बताते हो कि मैं लोकेशन क्यों सेट कर रहा हूँ। ये एक्चुअली में यूज इसलिए हम कर रहे होते हैं ताकि अगर हम अपनी ऐप स्टोर के ऊपर इसे अपलोड करें तो इशू कोई हमें फेस ना हो, या हमारे क्लाइंट है उससे कोई इशू फेस ना हो। तो हम मतलब कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हैं। तो सर आप ये iOS इमुलेटर ये इंस्टॉल करना सिखाएंगे या? हम जरूर करेंगे इसे, नो इशू। क्योंकि मेरे पास तो है विंडो लैपटॉप। वेट 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 विंडो पे iOS का सिमुलेटर एक्चुअली नहीं होगा, मेरे पास मैकबुक है तो इसलिए इसके ऊपर आ रहा है। तो लेकिन इशू नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसा है कि जब आप एंड्रॉइड के लिए कोई कोड करते हैं ना तो वो सेम लाइक आपका iOS बिहेव करता है। हम जैसे जैसे कोई हाँ कोड जी, हाँ जी, करेंगे ये ना, तो है। जी जी मैं बिल्कुल। जैसे जैसे हम कोड करेंगे ना मैं आपको दिखाऊंगा बकायदा कि हाँ देखें जी, हाँ ये जी, एंड्रॉइड के लिए है और ये iOS के लिए, तो आपको जी तसल्ली जी रखेंगे जो आप चीज इसके लिए कर रहे होंगे एक्चुअली में सेम आप iOS के लिए बिहेव कर रहे होंगे, ठीक ठीक है। हो। तो अगर ठीक। आप में से किसी के पास iOS मतलब कोई चीज नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो हाँ, अगर आपका क्लाइंट डिमांड करता है इस चीज की तो आप ये काम कर सकते हैं, आप किसी को कह सकते हैं कि यार मैं आपको कोड देता हूँ, प्लीज मुझे इसकी ना मतलब कि IPA फाइल बना दें iOS के लिए, तो बस तो वो आपको जनरेट करके दे देगा। ओके ठीक है। तो इट्स नॉट इशू। तो एनी क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स प्लीज आस्क। अगर मैं आपको इसका कोड भी कब से स्टार्ट करेंगे फ्लटर को? इंशाल्लाह आज ओरिएंटेशन क्लास थी तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह। वो सर जी और हम पढ़े हैं। जी जी। रावल वगैरह ये यहाँ स्टॉप कर देंगे या उसके बाद? एक्चुअली समझा नहीं, कैन यू स्पीक अगेन प्लीज? कैन यू स्पीक अगेन प्लीज? Okay, I was just going to show you something. Where is my- बट सर मैंने ये वीडियोस में देखा हुआ, यूट्यूब वीडियोस में iOS इमुलेटर मिल जाता है वेबसाइट वगैरह में पे करके। पे
पे अगर जो आप वहां पे कर रहे हो उसे, तो फिर आप उसे जमा करके फिर मैकबुक ही ले लो। मतलब कब तक आप उसे पे करते रहोगे? जाहिर बात है वो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देगा जो हाँ जी, भी हाँ हो, जी, हाँ लेकिन जी। फिर भी जो अपने पास एक इमुलेटर या सिमुलेटर हो तो मतलब उसका ज्यादा बेनिफिट है, ना कि आप वेबसाइट के ऊपर जाके उसे एक्सेस कर रहे हैं चीजों को। जी सही। तो ये चीज है। और एक और है एक प्लगइन है, प्लगइन से मुराद एक पैकेज है डिवाइस प्रीव्यू का, मैंने उसे बहुत पहले यूज किया था, तो अब का भी हो सकता है। तो उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं कि मतलब मेरी एप्लीकेशन मतलब कि आईपैड पे कैसे बिहेव कर रही है, आईफोन पे कैसे बिहेव कर रही है, ठीक है। तो वो आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। ओके ठीक है। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपका जो आप जिसके ऊपर वर्क कर रहे हैं वही आपके लिए बिहेव कर रहा होगा ऐसा। ओके। और सर ये प्लगइन एक है लाइव सर्वर, ये चलेगा इमुलेटर पे कि नहीं? VS लाइव कोड। हाँ लाइव सर्वर। लाइव सर्वर वो मैंने सुना वेबसाइट है, वगैरह। लेकिन इसे एक्चुअली मैंने वर्क वगैरह नहीं किया इसके ऊपर। हाँ जी, वो वेबसाइट वगैरह में चलता है, वो क्रोम वगैरह में। लाइव सर्वर नहीं, मैंने ऐसे कोई वो लाइव कोचिंग। कोड होता है ना कि आप जब कोड लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ना वो क्रोम में रन नहीं नहीं, होगा। वो सिर्फ इसके लिए काम करता है, वेबसाइट्स के लिए काम हाँ करता है। जी, इसके लिए तो अच्छा। एमुलेटर जो है हाँ वो जी, हाँ अलग जी, से करना पड़ता है ना आपको मोबाइल ठीक का। है। ओके। ऐसा ही है। हाँ जी, बस यही कंफर्म करना था कि ये इमुलेटर वगैरह में तो नहीं काम करता या सिर्फ क्रोम में करता है। नहीं, इमुलेटर का अपना चीजें हैं, वेब की उससे रिलेटेड अपनी चीजें हैं। एक ये भी है कि बेनिफिट इनका ये है कि हॉट रीलोड का, जैसे आप यहाँ पे कोई चीज करते हैं, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, इसी को या इसको भी पकड़ लें। ओके, अच्छा अगर हम यहाँ पे कोई चेंजिंग देखें ना इसकी, अगर हम मैं कुछ भी करता हूँ, लाइक ये आप ऐप बार देखें, यहाँ पे कुछ और स्पेलिंग लिखे, अगर मैं कुछ करता हूँ इस तरह, और ठीक है, अब देखें दोनों में एट ए टाइम चेंज हुआ। यहाँ पे हाँ जी, बेनिफिट एक ये है कि हॉट रिलोड इसके ऊपर डिपेंड होता है, मतलब आप यहाँ कुछ भी चेंज करते हैं, कंट्रोल एस दबाते हैं, कमांड एस दबाते हैं, तो जी वो जी। एकदम आपको शो करवाते हैं। आपको ये नहीं है कि आप उसे पूरे का पूरा हॉट रीलोड करें, ठीक है, या हार्ड रीस्टार्ट करें, सॉरी ये रीलोड ऑटोमेटिक कर लेते हैं, तो हार्ड रीस्टार्ट करें, फिर वो ये होता है कि आप पूरी एप्लीकेशन दोबारा से चलाते हैं, तो इट्स नॉट अ बिग थिंग मतलब कि अच्छी चीज नहीं है। तो ये फ्लटर ने एक बहुत अच्छा काम किया कि हार्ड रिस्टार्ट वाला, आप जो अच्छा, भी चेंज करते हैं और आपको किस फोन टाइप की वाला है? ठीक है, ओके सही वो होगा। दिखा देता है। और जैसे मैं आपको बता रहा था, ये ओप के ऊपर बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है, क्लासेस आपकी बनी होती हैं और आप उसको उसी चीजों को एसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो मैंने आपको कहा विजिट, हर चीज विजिट के ऊपर डिपेंड है। ये ऐप बार एक्चुअली विजिट है, सेंटर विजिट है, इसके बाद कॉलम आ जाता है, मतलब कि अगर आप इसको तो आप यहाँ पे अगर कॉलम लगाएं, ठीक है, कॉलम आपसे चिल्ड्रन लेता है, मतलब तभी वो मुझे यहाँ एरर दे रहा है, चिल्ड्रन लेगा। और चिल्ड्रन आपको पता है मतलब कि काफी सारी चीजें हो सकती हैं, तो इस तरह करके आप उसमें मल्टीपल चीजें दिखा सकते हैं। मतलब हर चीज इसके अंदर जो है वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपने उसे कैसे लेआउट चाहिए, आपको आपने क्या चीज करना है। कॉलम है वो आपको मतलब मल्टीपल चीजें दिखाएगा, तो ये चीजें हैं। तो ये जो इसकी हर चीज है, ये सारी की सारी इसके अंदर विजिट। अब देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ कॉलम के अंदर क्या टेक्स्ट को शो करवाया, बार 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 वो उसी उसी चीज दिखा रहा है। इसी तरह सेम लाइक आप इसे रो में कन्वर्ट कर दें, तो अब वो क्या कर रहा है ये देखें, अब उसने रो की फॉर्म में दिखाया। मतलब यहाँ पे जो भी चीज है, हम जो भी चीज करेंगे वो सेम लाइक मतलब कि एक दो दूसरे हर चीज के ऊपर इंप्लीमेंट होगी, और हम विजिट के अंदर वर्क करेंगे। और जो हम कोडिंग वगैरह है कुछ भी करेंगे, जैसे अब ये देखें इंक्रीमेंट, यहाँ एक किस्म का मैथ ही है। हमने क्या किया, इंटीजर एक नंबर को डिफाइन कर दिया, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। और हमने फिर उसे क्या किया है, इंक्रीमेंट, जैसे कि हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी करते हैं, सी में बेसिकली हम कर रहे होते हैं। तो इस तरह की ये चीजें हैं, तो ऐसी ये हमारी डेवलपमेंट मतलब फ्लटर के अंदर होती है। तो
अब किसी का कोई क्वेश्चन है, काइंडली आस्क मी। Because time is going to be ended. सर हम इसमें ये ई कॉमर्स ऐप बनाएंगे या गूगल मैप? ई कॉमर्स ऐप बना सकते हैं, क्यों नहीं, हर चीज बन सकती है। आप उसमें क्या करते हैं? हम ये अगर एक ऐप बनाए तो हम ये हर तरह की ऐप बना सकते हैं या कुछ आप होगा? आप हर चीज बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामर्स के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। ओके। तो मतलब मैं एक बात करता हूँ कि अगर जो किसी की थिंकिंग में आ रही है तो वो ऐसे नहीं है, डेफिनेटली उसका कोई सोल्यूशन है, वो बन सकती है, ठीक है। मतलब उसका कोई एक वे नहीं है तो दूसरा हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि अक्सर चीजें हैं जो आपकी शायद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट ना करें, ठीक है, वो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट कर रही हो, जी जी। ठीक है। तो हाँ, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो लेकिन आप कुछ भी बना सकते हैं, मतलब एटलीस्ट आप यूआई तो बना सकते हैं, ठीक है, हाँ, किसी भी हाँ, तरह का। तो उसके बाद और जो बैकएंड है, मतलब हम जो स्टोरेज मीडियम यूज करते हैं, फायरबेस है, फायरबेस आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर लेकिन फायरबेस जो है वो एक्चुअली आपको एक्सपेंसिव पड़ जाता है, मतलब जो क्लाइंट को पड़ जाता है, क्यों, आप उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन ली होती है, आपने उसे पे करना होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर आप एपीआईज हैं, बैकएंड डेवलपर एक हायर कर लो, मतलब आप उसमें कस्टमाइजेशन करवा सकते हो, तो वो आपका मतलब एपीआईज वगैरह बना के दे सकता है। तो इट्स मस्ट इजी, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल। जहाँ इश्यू हो मतलब हेल्प ले सकते हैं, स्टैक ओवरफ्लो है, मैं हूँ, मतलब आपके और दोस्त हैं सर्कल के अंदर हैं, तो मतलब हर चीज हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। जस्ट 1 मिनट लेफ्ट, किसी और कोई क्वेश्चन है काइंडली? ओवरऑल ये है कि हर दौर में हर चीज का स्कोप होता है। बेशक एआई आ चुकी है, आप उसे अपने लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं स्टक हो जाते हैं, लेकिन अब ये नहीं है, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं फ्लोटर डेवलपर बनूं या मैं कोई भी डेवलपर बनूं, आप कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हो, तो पहले ये है कि आप उसे मतलब कि अपनी लॉजिक्स यूज करें काइंडली, ठीक है। उसके बाद ही आप चैट जीपीटी या किसी चीज का यूज करें, वरना फिर ऐसा होगा कि आप एक वक्त आएगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू। सो होपफुली काफी बातें हुई हैं और अंडरस्टैंडिंग भी हो गई होगी, आप मोटिवेट भी हो गए होंगे। कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।